Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all set. Today we discuss about the lecture number 7 of the evolution. The topic of our lecture is the phyletic gradualism. Phyletic gradualism, and later we discuss to the punctuated equilibrium. The punctuated equilibrium and the phyletic gradualisms, basically these are the two ideas, these are the two theories of the rate of evolution. These are the two theories of the rate of evolution. Rate of evolution, basically it is very important, it is very essential to know the meaning of the phyletic gradualism or punctuated equilibrium. So the meaning of the rate of evolution is that the change in the genotype of organism over a period of time. एक ऑर्गेनिज्म की जीनोटाइप में वक्त गुजरने के साथ साथ क्या चेंज आता है, दैट इज द बेसिकली रेट ऑफ एवोल्यूशन. अगर नहीं समझाई तो इसको आसान लफ्ज़ों में समझें. द रेट ऑफ एवोल्यूशन मीन्स दैट हाउ क्विकली एवोल्यूशन टेक्स प्लेस. एवोल्यूशन कितनी जल्दी हुई है, किस रेट पर हुई है, या एवोल्यूशन आहिस्ता से हुई है या एवोल्यूशन बिल्कुल तेज़ी से हुई है. बेसिकली this is the rate of evolution. So here we discuss about the two theories, but first we write to the rate of evolution. Rate of evolution, basically it is the rate of change of genotype over a period of time is known as the rate of the evolution. तो एवोल्यूशन किस रेट पर हुई है, इसी को डिस्कस करने के लिए साइंटिस्ट आर्ग्यूमेंट करते हैं. कुछ साइंटिस्ट फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म्स को प्रमोट करते हैं और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं. punctuated equilibrium. तो ये बेसिकली हमारी जो टू थीरीज हैं, दे टेल अस दैट हाउ क्विकली एवोल्यूशन टेक्स प्लेस. रेट ऑफ एवोल्यूशन इट मीन्स हाउ क्विकली एवोल्यूशन टेक्स प्लेस. क्या एवोल्यूशन हुई है, एक प्रोसेस से हुई है. वो प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया है नेचुरल सिलेक्शन का, बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन इट इज ओनली द mechanism, it is only the process that describe the process of the evolution. So it is clear that the evolution takes place by a process. This is the natural selection. But it is not clear that at what rate the evolution occur, either slowly or the quickly. So in order to understand slowly or equally or quickly, we discuss about the phyletic gradualism before and later to the punctuated equilibrium. So let's start. First of all, we talk about the phyletic gradualism. Phyletic gradualism. Phyletic gradualism, in order to understand its statement, it is essential to know the meaning of phyletic and the gradualism. What is the meaning of the phyletic? Phyletic, basically it is related to the ancestral. And gradualism mean the slow rate
slow rate. So what is the statement of the phyletic gradualism? It means the evolution takes place at a slow rate. Evolution takes place at a slow rate, and the new species arises from the previous species, and previous species is the phyletic species, is the ancestral species. Okay, so what is the statement of the phyletic gradualism? That evolution has a fairly constant rate and new species evolve from ancestral species and gradually, not to the quickly. Okay, and this is the basically is the phyletic gradualism. The new species evolve from the previous one by the gradual processes, by the gradual events. And what is the gradual events? It means species A proceed to the different stages. To the different stages. For example, अगर फिशेस हैं, समझने के लिए अगर फिशेस हैं उसमें गिल्स थे, ठीक है, फिश है इसमें अगर गिल्स थे तो फिर गिल्स मॉडिफाई हुए हैं कोई और स्ट्रक्चर में, ठीक है, समझने के लिए गिल्स मॉडिफाई हो गए किसी और स्ट्रक्चर में, यानी कि गिल्स से हमारे अंदर जो मैमल्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैमल्स आल्सो इवॉल्व फ्रॉम द फिश लाइक इंसेस्टर। अब फिर गिल्स जो है ये चेंज हो गए, फॉर एग्जांपल समझने के लिए लंग्स में, तो इस तरह चलते चलते एवोल्यूशन टेक्स प्लेस हुई, यानी कि एक स्पीशीज से जो स्पीशीज बी है, जो स्पीशीज बी है उसको प्रोड्यूस होने में देयर विल बी अ स्टेप्स, देयर विल बी अ स्टेज of the gradualism. So one species evolve to the next species or produce to the next species not directly but through the intermediate stages. This is the basically gradualism, आहिस्ता से, ठीक है, as proposed by the Darwin. Basically gradualism is the idea of the Darwin. Okay जी, so ये था basically idea कि व्हाट इज द phyletic gradualism, कि एवोल्यूशन ग्रेजुअल हुई है, यानी कि बाल्डनेस है, ठीक है, बाल्डनेस है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, बाल्डनेस है, गंजापन है, ये किस तरह से होता है? ग्रेजुअल, ठीक है, बिकॉज ग्रेजुअल प्रोसेस मीन रिमूविंग ऑफ 2 hairs, then 4 hairs, then so on, and ultimately there would be a complete loss of the hairs. So it is the gradual process and it leads to a different thing from a hairs to hairless head. It is the basically it is the gradualism. So it is the evolution, it is the change. Evolution का मतलब क्या है? It is the change, and change occur in the very larger very smaller steps and gradually. So basically this is the idea of the phyletic gradualism. Now we talk about the punctuated equilibrium. Punctuated equilibrium. Punctuated equilibrium, basically it is another mechanism of rate of evolution. It is another process, it is another idea of rate of evolution, that how quickly evolution takes place. Either evolution is the gradual process, either the evolution is the very rapid process. So in this case, punctuated equilibrium, we discuss about the
meanings of these two words. Basically here the punctuated means is the rapid change, is the rapid change. Rapid change. Punctuated mean is a rapid change, and equilibrium mean long periods of no change. नो चेंज, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नो चेंज। अगर आपको इस क्वेश्चन इस टर्म की मीनिंग पता चल गया है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। पंक्चुएटेड मीन देयर विल बी अ रैपिड चेंज इन शॉर्ट पीरियड्स, देयर विल बी अ रैपिड चेंज इन शॉर्ट पीरियड्स। In short period, and equilibrium mean there will be a long periods of the no change. Here we discuss about the statement of the phyletic punctuated equilibrium is that evolution takes place by long periods of no change, is followed by, is punctuated by short periods of the rapid change. नहीं समझ? According to the phyletic according to the punctuated equilibrium, evolution rapid change से हुई है, जैसा कि long period of time having no change, but at instant quickly there will be a short period, and in this short period there will be a rapid change. Evolution takes place by long periods of no change, which are punctuated by the short period of rapid change. This is the basically punctuated equilibrium. In this case, the evolution rate is not gradual, evolution rate is not slow, but in this case there will be a rapid change followed by a long periods of the no change. जैसा कि आपको समझाया था फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म में बार्डनेस की एग्जांपल देके, अब इसमें बार्डनेस नहीं होती बल्कि इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ हेयर एट वंस. This is basically a disease which occur in some persons. In those persons there will be a losing of the hairs. ठीक है, in one night within 24 hours there will be a losing of the some hairs, some cluster of the hair. So basically, in order to understand the punctuated equilibrium, the growing which having a complete loss of the hair, it is a best example. इसके मुताबिक कि आसान लफ्ज़ों में punctuated equilibrium basically long period है टाइम का, चल रहा है, कोई चेंज नहीं. तो एक पीरियड ऐसा आया, शॉर्ट पीरियड ऐसा आया, उसमें ग्रेजुअल चेंज हुई, यानी कि पूरी की पूरी स्पीशीज चेंज हो गई, और फिर उसके बाद फिर लॉन्ग पीरियड चलता है, फिर स्पीशीज चेंज होती है. जैसा कि ग्रेजुअलिज्म में मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्पीशीज है ग्रेजुअलिज्म में, और ये है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम. ग्रेजुअलिज्म में क्या था कि स्पीशीज ए से इंटरमीडिएट स्टेप्स थे, तो फिर क्या थी स्पीशी बी. लेकिन पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में क्या है, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में स्पीशी ए है, ठीक है, और इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, ठीक है. इट इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ नो चेंज, इट इज अ लॉन्ग period of no change, long period of no change, and it transform into the species A, transform into the species B,
basically it is the idea of the punctuated equilibrium which we are trying to understand. ओके, अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मैकेनिज्म हो सकता है एवोल्यूशन के लिए, सॉरी कौन सा रेट हो सकता है. आइदर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म इज करेक्ट और द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इज करेक्ट. इट अपॉन यू कि आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं. तो इसको ज़रा फर्दर इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा इन्हांस करके इसको ज़रा वाइडली देखते हैं बाय द एग्जांपल्स, बाय द एविडेंसेस. नाउ वी थॉरो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. Now basically we talk about the evidences. We talk about the evidences of phyletic and punctuated equilibrium. Punctuated equilibrium. यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म की. ठीक है, और यहाँ पर एविडेंसेस हो जाएंगे फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म के और इधर हो जाएंगे पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम्स के. डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. कुछ ने फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म को ट्रू करार दिया और कुछ ने पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को सही माना. सही. अब वो एक्सपेरिमेंट्स, बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स कह रहा हूँ, वो एविडेंसेस कौन थे. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म देयर विल बी अ ट्राइलोबाइट्स. एग्जाम्पल है ट्राइलोबाइट्स. Trilobites. Basically, trilobites are the invertebrates, and the scientists which are known as the Anston ने स्टडी की थी ट्राइलोबाइट्स पर. ओके, अब ये ट्राइलोबाइट्स में पाइगिडियल रिब्स होती हैं. क्या होती हैं जी? पाइगिडियल रिब्स. पाइगिडियल रिब्स होती हैं. पाइगिडियल रिब्स बेसिकली जो ट्राइलोबाइट्स होता है, आप इसको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे भी या गूगल पे भी कि ट्राइलोबाइट्स की शेप. अब ट्राइलोबाइट्स में जो पाइगिडियल रिब्स होती हैं बेसिकली वो उसके टेल रीजन में होती हैं. टेल रीजन की तरफ पाइगिडियल रिब्स होती हैं इसकी. अब इन्होंने, एंस्टन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसने तकरीबन 3000 से अबव स्पाइसमेन लिए. 3000 से अबव स्पाइसमेन लिए इन ट्राइलोबाइट्स के, और इनमें पाइगिडियल रिब्स को काउंट करना शुरू कर दिया. 3000 में पाइगिडियल रिब्स को जब काउंट करना शुरू किया, और इसने डाटा तकरीबन लिया था 8 डिफरेंट साइट्स से. 3000 स्पाइसमेन एंड टेक डाटा. डाटा क्या होता है? फॉसल रिकॉर्ड. बिकॉज वी डिटरमाइन द रेट ऑफ एवोल्यूशन बाय यूजिंग द फॉसल रिकॉर्ड जो है, इसने तकरीबन कोई 8 डिफरेंट प्लेसेस से लिया. अब 8 डिफरेंट प्लेसेस से फॉसल रिकॉर्ड लेकर ट्राइलोबाइट्स के, और इनके 3000 स्पाइसमेन बेसिकली इसने लिए. 3000 स्पाइसमेन के फॉसल रिकॉर्ड जब लिए तो देखा कि इन 8 डिफरेंट प्लेसेस में जो ट्राइलोबाइट्स पाए जाते हैं उनमें पाइगिडियल रिब्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हैं. क्या कर रही हैं जी? पाइगिडियल रिब्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हैं. फॉर एग्जांपल, अगर प्लेस नंबर 1 का डाटा है, समझने के लिए, अगर उसमें 18 पाइगिडियल रिब्स हैं तो प्लेस नंबर 2 में 19 हैं, और प्लेस नंबर 3 में वो 20 हैं, और चलती चलती 21-22. ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि उसने जो डाटा लिया वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 18 to 19, 19 to 20 to 21 and so on. So this verify the result of the phyletic gradualism, that evolution follow the rate of the phyletic gradualism. But in case of the punctuated equilibrium,
an other experiment is done, which is done by the Cheetham, and Jackson. And the experiment of the Cheetham and Jackson, basically these are the two scientists on the Birozoans. Birozoan, basically these are the sessile aquatic animals. These are the sessile aquatic protozoans. ठीक है जी, प्रोटोजोन्स। अब बात को समझना है कि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम में जब चीथम और जैक्सन ने बायरोजोआन लिए, जो सेसाइल एक्वाटिक क्या है, प्रोटोजोआन। बेसिकली चीथम ने एक इंडिविजुअल में 46 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया। एक स्पाइसमैन लिया और उसमें 46 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया, और ये कैरेक्टर बेसिकली जो 46 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक स्पाइसमैन में थे, उसने 1000 स्पाइसमैन को स्टडी किया। अब 1000 स्पाइसमैन में अगर एक में 46 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 1000 में 46,000 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब ये सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जब चीथम ने डिस्कस किए, तो इसने देखा कि इनके दरमियान जो एक स्पाइसमैन है, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉसिल रिकॉर्ड। बिकॉज वी study, we talk about by the rate of to the rate of evolution, and for the rate of evolution there will be a no present evidence, there will be a fossil record only which are found in the rocks. Up in this case 1000 specimen, basically these are the fossil records of the 1000 specimen. अब इस केस में 1000 स्पाइसमैन में और एक स्पाइसमैन में जो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, एक स्पाइसमैन दूसरे से मुख्तलिफ था और इसके दरमियान कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं थी। अगर भी इंटरमीडिएट स्टेज थी तो उनमें तकरीबन 1,60,000 साल का फासला है, ठीक है, यानी कि 0.16 मिलियन का फासला है इनकी इंटरमीडिएट स्टेज में। देयर विल बी अ नो इंटरमीडिएट स्टेज, नो इंटरमीडिएट स्टेज between two birozoans fossil. So there will be an incompleteness of the fossils. अब 1,60,000 ओल्ड फॉसिल है अगर कोई मिलता है, तो ये वो जो पैटर्न है, चीथम ने कहा कि इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, बल्कि ये आप स्टेटमेंट आप अगर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की आपने देखी थी, तो इसका मतलब था देयर विल बी अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ नो चेंज इज फॉलोड बाय द रैपिड चेंज ऑफ द शॉर्ट पीरियड। अब इसमें लॉन्ग पीरियड में कोई चेंज नहीं, 1,60,000 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अब इसमें कोई चेंज नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक स्पाइसमैन है, वो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्म होकर दूसरा स्पाइसमैन नहीं बना, बल्कि एक स्पाइसमैन रहा और उसमें मैक्रो म्यूटेशन आई इंस्टेड ऑफ द माइक्रो म्यूटेशन। उसमें इतनी बड़ी म्यूटेशन आई, मैक्रो म्यूटेशन आई, दैट विल बी चेंज अ स्पीशी इनटू अनदर डिफरेंट स्पीशी। देयर विल बी अ मैक्रो म्यूटेशन occur that will change one species to complete different species, which is a species B। तो ये बेसिकली आइडिया था पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम का, और ये करेक्ट था बिकॉज दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आर डन बाय द साइंटिस्ट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज द चीथम। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट को देखा जाए तो ये एक्सपेरिमेंट भी ठीक है, इससे वेरिफिकेशन होती है ग्रेजुअलिज्म की, दैट ग्रेजुअलिज्म इज द रेट ऑफ एवोल्यूशन, कि
ग्रेजुअलिज्म के मुताबिक एवोल्यूशन हुई है। अगर इसको देखा जाए पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को, तो ये भी ठीक लगता है बिकॉज इट इज़ अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब ये कंफ्यूजन अभी तक क्लियर नहीं हुई कि आइदर फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म इज करेक्ट और द पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन अभी तक अनक्लियर है। अब इसको आप फर्दर अपनी रिसर्च में लेके जा सकते हो और इसको डीपली रिसर्च करके सीख सकते हो कि वेदर द ग्रेजुअलिज्म इज करेक्ट और द फाइलेटिक इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। लेकिन ये याद रखिएगा कि ग्रेजुअलिज्म का जो आइडिया है दैट इज गिवन बाय द डार्विन, एंड डार्विन बेसिकली इज अ वेरी मेन साइंटिस्ट इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बट द एविडेंसेस, जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं उनमें जो ज़्यादा प्रोमोट किया जाता है वो है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। सही, बेसिकली दीज आर द टू एवोल्यूशनरी थीरीज अबाउट द रेट ऑफ द एवोल्यूशन। समरी आपको करके बता देता हूँ। What is the rate of evolution? Rate of evolution means the rate of change of genotype in the organism or in the population over a period of time. It is the rate of evolution. In simple words, rate of evolution means how quickly evolution takes place. Okay, and here we understand the term rate of evolution by understanding the two theories, which is the phyletic gradualism and the punctuated equilibrium. In phyletic gradualism, the evolution takes place gradually and the rate is fairly constant from one species to another species. There will be a intermediate stages and one species do not directly evolve into the next species. This is the phyletic gradualism. And in case of the punctuated equilibrium, there will be a punctuations, there will be a short periods of the rapid change. There will be a short periods of rapid change. It is the punctuated equilibrium का मतलब क्या? Followed by a long periods of no change. It is the punctuated equilibrium. तो इनके एविडेंस बताए, इसमें ट्राइलोबाइट्स ली, इसमें बायरोजोआंस लिया, तो इसमें कंक्लूजन ये निकला कि दोनों के दोनों मैकेनिज्म्स ठीक हैं बिकॉज इट आल्सो वेरीफाई एंड इट आल्सो वेरीफाई। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।